Cada vez que se va a implementar la IAM Camau, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसार येषु नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं अभयमङ्गलं जय हि जगजीवनो वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगदाहो जगबन्धु जय हि जगप्रिया मंगल जय हि सुयाणपभु तीर्थजराणम् अपचिमो जय हि गुरुलोकाणं जय हि महावीर कल्याणवादपारं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देहं वन्देऽहं ज्ञातनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। સંસારની અંદર ચાર ગતિઓમાં જીવો છે. સવાલ શું છે કે આ ચારે ગતિઓમાં જીવો હોવાનું કારણ સ્વાભાવિક રીતે જે કંઈ પણ આયુષ્ય બંધાશે એ આ ચારે ગતિના જીવોને માટે બાંધવું અનિવાર્ય છે. જે જીવ આવશે અને જેવા પ્રકારનું આયુષ્ય બાંધશે તો એની અંદર કયો જીવ ક્યારે જે છે કઈ ગતિમાં જાય તો એ પ્રમાણે દરેક જીવે પોતાનું આયુષ્ય બાંધવું અનિવાર્ય છે. એટલે જીવ હવે ક્યાં છે, કઈ ગતિમાં છે, ક્યાં આગળ કઈ ગતિમાં જીવ જાય છે, કારણ શું છે કે ગતિના આધારે એને આયુષ્ય બાંધવાનું હોય છે. હવે જ્યારે ગતિના આધારે આયુષ્ય હોય તો એના હિસાબે ગણિત બેસે છે. તમે તિર્યંચ ગતિમાં જઈને કોઈ પણ જીવ જે છે નાનું આયુષ્ય લઈને જઈ ના શકે. દરેક જીવે પોતપોતાને હિસાબે જ્યાં આગળ જે ગતિમાં જતો હોય તો એ ગતિમાં જવા માટે એને હવે આ જે છે મનુષ્ય ગતિમાં જીવ આવે
અહીંયા આ જીવ જે છે તિર્યંચ ગતિમાં આ જીવ અહીંયા તમે જો નરક ગતિમાં જાય છે, અહીંયાથી આ જીવ દેવ ગતિમાં જાય છે. ચારે ગતિઓની અંદર જીવે જવાનું હોય છે. હવે ક્યારેક જીવ મનુષ્યમાંથી દેવમાં જાય અને ક્યારેક દેવમાંથી મનુષ્ય. તો સ્વાભાવિક છે કે દેવ હશે તો દેવને પણ ત્યાં આગળ એ પ્રમાણે એક ગતિ નક્કી કરવી પડે પહેલા અને પછી આયુષ્ય બાદ. કારણ ગતિ પ્રમાણે આયુષ્ય. દેવ ગતિની અંદર જાઓ એટલે ત્યાં સાગરોપમનું આયુષ્ય, પણ મનુષ્ય ગતિની આવો તો પછી એટલા મોટા સાગરોપમનું આયુષ્ય નથી થતા. તો શું કરશો? આપણે આજે અહીંયા મનુષ્યમાં આવવું છે ને 80-100 લેવું છે. તો જ્યાંથી આવો, જે દેવલોકમાંથી આવો ત્યાંથી તમારે 80-100 આયુષ્ય લઈને આવો. મહાવીર સ્વામી છેલ્લા ભવે 27મા ભવની અંદર આવ્યા તો દેવલોકમાંથી આવે છે. આદેશ્વર ભગવાન એકદમ સર્વાર્થ સિદ્ધ ટોપ દેવલોકમાંથી આવે. નૈમિનાથ ભગવાન એકદમ ઊંચા સર્વાર્થ સિદ્ધમાંથી ઊંચામાં ઊંચા દેવલોકમાંથી આવી રહ્યા છે. પણ ત્યાં એમનું આયુષ્ય 33 સાગરોપમ છે. હવે 33 સાગરોપમનું આટલું મોટું આયુષ્ય હોવા છતાંય ખાલી જે છે 1000 વર્ષનું આયુષ્ય લઈને નૈમિનાથ આવે. 20 સાગરોપમનું આયુષ્ય હોવા છતાંય મહાવીર સ્વામીનો જીવ માત્ર 72 જ વર્ષનું આયુષ્ય લઈને આવ્યો. કેમ ભાઈ? અહીંથી જતી વખતે મનુષ્યમાંથી ત્યાં ગયા છે અને મનુષ્યમાંથી ત્યાં ગયા ત્યારે એમને 20 સાગરોપમનું આયુષ્ય બાંધ્યું ત્યારે ત્યાં ગયા. તમારે અહીંથી જે દેશમાં જવું હોય એની ટિકિટ અહીંયાથી લઈને ત્યાં જવાનું છે. ત્યાં ગયા પછી ટિકિટ નથી લેવાની. જે ગતિમાં જવાનું છે એનું આયુષ્ય અહીંથી બાંધીને ત્યાં જવાનું. ત્યાં ગયા પછી આયુષ્ય નથી બાંધવું. तो यहाँ उस हिसाब से बांधेंगे तो ही जाएंगे. अब महावीर स्वामी 26वें भव में 20 सागरोपम का आयुष्य जी रहे. पार्श्वनाथ भगवान भी उसी 10वें देवलोक में 20 सागरोपम का लंबा आयुष्य. लास्ट में आते आते पार्श्वनाथ भगवान ने अपना 100 बरस का आयुष्य बांधा और यहाँ पर आए. तो आपको जितना सॉलिड, जितना बड़ा आयुष्य बांधना है, पहले आपको नक्की करना. गति के हिसाब से आयुष्य बनते हैं. अब गति तो 4 ही है. जीव अनंत है. अनंत जीवों को अपना अपना आयुष्य कर्म बांधना है. एक पेड़ पौधे का जीव पत्ता देख रहे हो, पत्ता डाली पर से गिरता है, उसके पहले वो अपना आयुष्य बांधेगा फिर गिरेगा. अब जब तक उसका जीवन काल है, अब वो आयुष्य बांधेगा फिर मरेगा. मृत्यु हो गई, चला गया, तो वो भी जीव खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, पानी भी नहीं पिएगा, कुछ नहीं. इसलिए वो हरे में से सूख करके पीला बन जाता. हमारा भी वैसा ही है. जीव शरीर छोड़कर चला जाए, उसके बाद में आप मुंह में रसगुल्ला डालो, गुलाब जामुन डालो, पड़ा रहेगा. खाने वाला ही चला गया. अब कौन है, कौन खाने वाला? जब तक जीव शरीर में है वहां तक ही खाना या पीना होगा. आप मुंह खुला रह गया तो आप सोचो मैं पानी डाल दूं, दूध डाल दूं, कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा. जब तक अंदर जीव था वहां तक आपने मुंह में कुछ भी रखा तो वो खा सकता. खाने का काम जीव कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा है. शरीर साधन है. शरीर उस क्रिया कराने वाला साधन है. अंदर कौन है? जीव. आपने मुंह में रखा तो चबाने का काम जीव का, दांत का है. चबाने का काम करेगा, रस सलाइवा मिक्स होकर नीचे उतरेगा, पेट में जाएगा, पाचन होगा, आंतों में जाएगा, रस रक्त आदि सब तो धातु बनेगी. सारा काम जीव का. कोई भी हो, पशु पक्षी के तिर्यंच गति के जीव, सबका एक ही काम. इधर देखिए, गति तिर्यंच की है, लेकिन तिर्यंच की गति के अंदर 5 प्रकार के जीव इसी में आएंगे. एक इंद्रिय जीव, इसमें ये 2 इंद्रिय वाले, इसमें ये 3 इंद्रिय वाले, इसमें ये 4 इंद्रिय वाले,
और इसी में आएंगे पंचेंद्रिय वाले। पंचेंद्रिय में पशु पक्षी आ गए सब। अभी गिने जाएंगे, गति इनकी 3 इंच की है। पेड़ पौधे 3 इंच की गति में, चींटी मकोड़े 3 इंद्रिय जो है 3 इंच गति में, मक्खी मच्छर सब गति 3 इंच की है। हाथी घोड़ा ऊंट बैल बकरी या फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षी सब 3 इंच गति में है और सबका अपना अपना आयुष्य। अभी आप देख रहे हो कितने मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन मच्छर जो है सब चौरेंद्रिय जीव हैं, आएंगे जन्म लेंगे जीवन जिएंगे। कितना काल तक जिएंगे साहब? अगर आप उनको न मारो, कुछ भी ना करो, उनका नेचुरल आयुष्य कितना है? जितने दिन उनका आयुष्य सबका है। अगर कोई निमित्त नहीं मिलता है तो नेचुरल आयुष्य वो अपना जीवन जिएंगे। अब उससे कम आयुष्य में अगर जल्दी मरना है तो निमित्त मिलने चाहिए। अब लेकर मारने लगोगे तो मरेंगे। दुनिया में मच्छरों का जन्म लेना भी अनंत काल से। लोग मार भी रहे हैं, हजारों उपाय करके मार रहे हैं। अब उन जीवों की उत्पत्ति कोई रुक रही है क्या? कहीं नहीं रुकी। आज अमेरिका में जाओ, वहां भी मच्छर है, यहाँ पर। अब उन जीवों को भी उत्पन्न होना है। कहाँ उत्पन्न होंगे साहब? शुद्ध साफ स्वच्छ पानी होगा तो भी जाकर के मच्छर उत्पन्न उसी में होंगे। बस वो संग्रहित रहना चाहिए, पड़ा रहना चाहिए। गंदे गटर वाले गंदे पानी में उत्पन्न नहीं होते हैं। आप समझते हो गंदगी में नहीं, शुद्ध साफ स्वच्छ पानी पड़ा रहना। अब एक टायर पड़ा है और उसमें पानी पड़ा है, हो गया 4 दिन हो गया, मच्छर उत्पन्न। बहते पानी में नहीं होंगे। प्रवाह में पानी अगर बहता जा रहा है तो नहीं, कहीं पर संग्रहित पानी साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। वो भी अपने बच्चे रखे, अब उनके बच्चे होंगे, वो वापिस पनपेंगे। चौरेंद्रिय जाति है साहब। मच्छरों की संख्या मनुष्यों से 1000 गुनी ज्यादा है। तिर्यंत गति है। मैंने अभी पहले भी बताया कि 7 लाख के हिसाब से देखने जाओ तो संसार के समस्त जीवों में सबसे कम संख्या मनुष्य, सबसे कम। अब ये तो हो गई संख्या की दृष्टि से, कौन कितने कम ज्यादा वो अलग। सवाल आयुष्य, लाल चींटी का आयुष्य, काली कीड़ी का आयुष्य, मकोड़े का अनुष्य, खटमल का आयुष्य। उनका जीवन कैसा जीना है? आप मात्र आयुष्य का, अगर कोई आपको पूछे, बोलिए भाई साहब आयुष्य अच्छा है कि खराब है, आप क्या जवाब दो? आयुष्य अच्छा है कि खराब है, आप क्या जवाब दो? कोई रेलवे की पटरी जाकर पूछे कि अच्छी है कि खराब है, अच्छी खराब नहीं, मजबूत है कि नहीं वो देखो। कमजोर होगी तो इतनी बड़ी ट्रेन, एक ट्रेन का वजन कितना हुआ? एक ट्रेन का वजन हजारों टन है। अकेला एक इंजन का ही वजन कितना है? और इतने वजन को लेकर इतनी स्पीड में चलना है। अब वो पटरी का क्या होगा? कच्ची पोची जो है पटरी हो, लोहा इतना कच्चा हो तो क्या होगा? आप बोलो सोने की पटरी बना दो, सोना तो सॉफ्ट मेटल है। सिल्वर इज आल्सो द सॉफ्ट मेटल। एल्यूमिनियम सबसे सॉफ्ट मेटल है। और सबसे हार्ड कौन सा है? लोहा है। क्यों हार्ड है और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द पोरोसिटी। 1 mm के माइक्रो पोर्शन में सोने के पार्टिकल्स कितने आएंगे और आयरन पार्टिकल्स कितने आएंगे? डेंसिटी पर पूरा आधार रखता है। वही नतीजा हमारी हड्डियों में है। हमारी हड्डियों की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, किससे होगी? कैल्शियम से होगी। इतनी आपकी हड्डियाँ मजबूत। आप गिरो तो भी हड्डी नहीं टूटेगी। अब इनकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जीवन में जब शरीर के अंदर कैल्शियम ही नहीं जा रहा है,
आपको मैदा खाना है, तली हुई चीजें खानी है, फाफड़ा ने सेव गांठिया खावा है, फिर ऊपर चाय पीनी है, तो आपकी डेंसिटी घटती जाएगी, तो जाके हड्डियां पूची हो जाएगी, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप गिरो तो स्लिप होते ही हड्डियां तो, नहीं तो शरीर के अंदर पार्थिव अंश सबसे ज्यादा मजबूती जो है हड्डियों की, और हड्डियों की मजबूती को कहते हैं संघयन। फिर वो 6 प्रकार का संगण है, वज्र ऋषभ नाराज संगण, ऋषभ नाराज नाराज वगैरह 6 संगण। और આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય મહારાજ આવે ત્યારે થોડી ડિટેલમાં સમજજો। ये संगठन आपकी मजबूती का जो है, जब आपको मोक्ष में जाना होगा उसी भव में कंपलसरी एकदम सॉलिड हड्डियों की मजबूती का वज्र ऋषभ नाराज संगठन प्राप्त करना, कंपलसरी करना। वज्र ऋषभ नारायण संगण का इतना सॉलिड हड्डियों का मजबूत ढांचा नहीं मिला तो मोक्ष नहीं हो। अब कितने सहयोगी फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कंपलसरी सभी तीर्थंकरों का पहला संगयन वज्र ऋषभ नाराज का, जिसके कारण बोन्स की डेंसिटी लोहे जैसी, और जिसके कारण नॉट ओनली डेंसिटी बट द जॉइंट्स ऑफ द ऑल बोन्स इतने मजबूत होते हैं साहब, इतने सॉलिड। महावीर स्वामी 12.5 बरस तक खड़े कैसे? 12.5 बरस कितना बोलते हैं आप? 12.5 कलाक खड़े रहते हैं। हेलो, यहाँ अलार्म लगा के रखते हैं घड़ी की, आप 12.5 घंटे तक, उतनी भी आपके शरीर की क्षमता नहीं है। लेकिन उस समय शरीर की हड्डियों का प्रमाण कैसा हो? तो महावीर स्वामी ने तो कभी जिंदगी में कोई मैदा की चीज के बस हेव गौठिया के फाफड़ा के सेव चिवड़ो के पौआ के आ तो कोई चीज अड़े ये जमाने में आती नहीं, थती नहीं। वो जो काल था उसके अंदर आहार के बारे में लोगों की धारणा क्या थी? शुद्ध सात्विक और सॉलिड आहार खाना। ज्ञान नहीं था, इतना समझ नहीं थी कि कैल्शियम किस में कितना है, प्रोटीन किस में, आयरन कितने, ये ज्ञान इतना नहीं था, लेकिन उनकी समझ जरूर थी कि सॉलिड है। आज भी वही है, आज भी जहां है वो है। आप दाल बाटी चूरमा जो है वो सॉलिड हो गया। आपने एकदम जो है दाल बाटी बना ली, 5 दाल इकट्ठी हो गई, मूंग की दाल आ गई, उसके साथ में आटे के बने हुए आपके जो है बाटे हो गए, उसको घी में डालो, थोड़ा सा गुड़ डालो और खा लो। अब इससे ज़्यादा ताकत तो और किसी से नहीं आ सकती। लेकिन खाना ही मात्र नहीं है, पचाना भी आना चाहिए, फिजिकल एक्सर्शन करके पचाना भी आने चाहिए। तब जाके पुराने ज़माने में राजस्थान में 1 किलोमीटर जाकर के सिर पर 2 घड़े पानी लेके आते। मजे तो लया कि देखिए ही नहीं भैया, हमें आनंद मेला आप मेलो 2 मटका लेने जाने पानी भरे लेना देखो। अब मुश्किल। हमारी मम्मी बताती थी कि उस समय राजस्थान में थे तब 1 किलोमीटर दूर जाकर सिर पर 2 घड़े और फिर कमर पर वापिस एक गागर में पानी भर के लाए। ऐसी स्थिति के अंदर उनके शरीर की वही मजबूती। अब उनको जाके पूछो कि आपको हेव खाता था कि चिवड़ो खाता था, गौठिया खाता था कि फाफड़ा खाता था कि चाय पीता? वो बोलते कुछ नहीं खाते थे, सुबह दलिया खाते थे, दही खाते थे, सुबह का नवकाशी नाश्ता, इसके सिवाय दूसरा कुछ। मकई की घाट दही के साथ खा लेते, बाजरे का खीस जो है दही के साथ खा लेते, वो उनकी सॉलिड। अब उनको ये पूछने जाओ कि क्या है किसमें कैल्शियम, तो क्या हमने कहीं खबर नहीं, हमें कहीं जानता नहीं, तुम खाता था उसे। और उस जमाने में और आज में कितना अंतर है? 50, 60, 70 साल का अंतर होगा सब। लेकिन आज आप लोग सेव गांठिया पर आ गए, पौआ ने बूंदी ने चिवड़ा ऊपर आ गए, હવે શું हालत है? तो जाकर के जब बोन्स में कैल्शियम नहीं बढ़ेगा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ेगी। अब बोन्स की पोरोसिटी बढ़ेगी, समझे कि नहीं, ऑस्टियोस्पोरोसिस जो बोलते हैं, तो फिर आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी। हड्डियां ही अंदर से कमजोर हो गई तो जॉइंट्स तो और कमजोर। और फिर अगर आपको ये मालूम नहीं है तो चाय पीने से बॉडी में से कैल्शियम और विटामिन जल्दी नष्ट होता है, विटामिन डी जल्दी नष्ट होता है। उस जमाने में चाय शब्द ही नहीं जानते थे लोग,
और आज चाय के बिना रहते नहीं, ये हालत आ गई। तो कितना कितना मतलब आप देख रहे हो 60-70 साल का परिवर्तन कितना है। सवाल किस बात की चल रही है? आयुष्य की। अब आप आयुष्य को अच्छा बुरा कहने के बजाय ये बोलिए कि आयुष्य आपका मजबूत कितना है, पहले इसके साथ। या तो आपका आयुष्य मजबूत है या ज्यादा कमजोर है। इतना ज्यादा सॉलिड नहीं है तो शरीर भी उसी प्रकार। अब शरीर उतना कमजोर होगा तो गिरते ही आपकी हड्डियां टूटेगी। आप पुराने 50-100 साल पहले इतने फ्रैक्चर नहीं होते थे जितने आज। कंपैरेटिव स्टडी करो, 50-100 साल पहले जो है 100 बरस की उम्र वाले में इतने जो है हड्डियां कमजोर नहीं। कल जो है जिनको पद्मश्री दिया गया उसमें 102 बरस की एक महिला बिना किसी आश्रय के खुद चल कर आके राष्ट्रपति से जब ग्रहण कर रही है, तो क्यों भाई साहब, उसकी ताकत कहाँ से आई? क्या खाती है? जंगल के आदिवासी हो, अब उनका आहार अपना, अब जिसका जिस प्रकार का, लेकिन आपने अपना आहार बिगाड़ दिया। आप बीते 50 साल में देखोगे भोजन के अंदर जितनी वैरायटीज बढ़ गई है, और जब ये मल्टीनेशनल कंपनियां मैकडोनल्ड, डोमिनोर और क्या क्या आ गई सब ऑलनेट वाले, इन लोगों ने जो इतनी आइटमें बनाकर अब प्रचार प्रसार ही हुआ। अब दाल ढोकली कोई आपको टीवी पर नहीं दिखाएगा, दाल बाटी चूरमा कोई टीवी पर नहीं दिखाएगा। अब पिज्जा पास्ता बर्गर ही देखने को मिले, सब में ये है, सब में ये। इसका रिएक्शन ये आ रहा है कि नई पीढ़ी के बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको जन्मजात आंखों के नंबर हैं, शरीर की कमजोरी है, हड्डियों की परिस्थितियां हैं, और डॉक्टर उल्टा सिखाते हैं 6 महीना दूध पीवડાવો એટલે ઘણું થઈ ગયું, પછી જરૂર નથી, પછી सॉलिड खवડાવે। अब उस पुराने जमाने के अंदर 100 साल पहले 2-3 साल तक माँ अपना दूध ही बच्चे को पिलाती थी, बाहर का पानी तक नहीं पिला। इतनी बड़ी विशेषता थी। जब इसके बच्चे का 100 साल का आयुष्य है तो उसका 2-3 साल का ही फाउंडेशन पीरियड होता है। वो जो बेसिक सॉलिड फाउंडेशन बनना होता है वो जरूरी है। वो नहीं बना तो बच्चे के लिए 100 साल तक भविष्य में बीमारियां बनी रहेगी। अब यहाँ जो आयुष्य बांधना, तिरंज गति का कोई भी जीव आयुष्य बांधेगा। नियम क्या है? परमानेंट नियम, आयुष्य कर्म वगरनो संसाરમાં એક પણ જીવ હોતો જ નથી। નંબર 2, આયુષ્ય કર્મ બાંધ્યા વગર એક પણ જીવ ક્યારેય મરતો જ નથી। નંબર 3, આવતા ભવમાં જઈને આયુષ્ય લેવાનું નથી કે બાંધવાનું નથી, आपको यहाँ से ही आयुष्य बांध करके दूसरे भव में साथ में लेके जाना। नंबर 4, ध्यान से देखो, दूसरा कोई आयुष्य आपको देता नहीं है। नंबर 5, कोई अपना आयुष्य आपको गिफ्ट में दे दे, ना ना मारा वधेली वाछली उम्र तमने आपी दो। अरे ये सब बोलने की भाषा का नाटक है। न कोई किसी का आयुष्य किसी को दिया जाता है न लिया जाता है। लेकिन अब क्या है कि हर एक के पास अपने तरह से सम्यक दर्शन का सही ज्ञान नहीं। लोगों ने अपनी अपनी तरह से सुना माना बान बनाया, बस वो हो गया ऐसा। अन्य किसी धर्म की धारणा मान्यता आ गई कि गॉड इज द क्रिएटर, सो इज गिविंग द बर्थ टू द ऑल लिविंग बींग्स, और जाते समय वो उसको गिफ्ट रूप में दे देगा। किसी को आयुष्य 100 दिया, किसी को 60 दिया, किसी को 50 दिया, किसी को 40। अब अगर कोई पूछे कि भगवान आपने इनको तो इतना दिया, मेरे को इतना, तो भगवान कहेंगे किसी को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है, जिसको जितना देना है दे देंगे, आपको कुछ नहीं पूछना। महावीर स्वामी ने इन सब बातों को उड़ा दी। जितनी फेक बातें थी, बिल्कुल निरर्थक असत्य गलत बातें थी, उसको साफ ना कह दिया। महावीर ने स्पष्ट कर दिया, दरेक जीव પોતાનું આયુષ્ય પહેલા બાંધશે એ પ્રમાણે લઈ તમારે જેવું જોઈએ છે એવું બાંધો, જેટલું બાંધવું છે એટલું બાંધો, લાંબુ બાંધવું છે લાંબુ બાંધો। તમારે કમજોર આયુષ્ય બાંધવું હોય તો વહેલું તૂટશે, તમે મજબૂત સોલિડ આયુષ્ય બાંધશો તો ક્યારેય નહીં।
इधर देखिए, अब किसकी बात है? देव गति के देवताओं का आयुष्य कभी टूटता ही नहीं है। नरक गति के नारकी जीवों का आयुष्य कभी टूटता ही नहीं। टूटना मतलब क्या? जितना ले गए हैं उसमें से कम होकर आप जल्दी मर जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। आज मनुष्य में बहुत दुख है तो कोई सोचते हैं आत्महत्या करके मर जाओ, छूट जाएंगे जल्दी से। कल कोई देवता, भूत, प्रेत, व्यंतर आदि वो बहुत दुखी होते, परेशान होते, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं आत्महत्या करके, सुसाइड करके मर जाऊं कल। कोई देव गति का देवी देवता कभी भी अपना आयुष्य नहीं तोड़ सकता। सुसाइड पॉसिबल नहीं है। नरक गति के अंदर जो जीव जितना आयुष्य लेकर गया, महावीर स्वामी का जीव चौथी नरक में 10 सागरोपम का आयुष्य लेकर गए। महावीर स्वामी 19वें भव में 7वीं नरक में 33 सागरोपम का आयुष्य लेकर गए। तो सातों नरक के आयुष्य की रेंज अलग अलग है। 7वीं नरक में 33 सागरोपम है, 6ठी नरक में 22 सागरोपम है। आप इस नरक गति के हिसाब से अगर आप लिख लें तो भी आपको ये ख्याल आएगा, लास्ट में लास्ट ये 7वीं नरक, ये 33 सागरोपम, ये 6ठी नरक 22 सागरोपम, ये वहाँ का उत्कृष्ट है। अब वहाँ पर आप जाओ तो इतना कंपलसरी हो गया, तो ये यहाँ पर जो है एक एक जगह पर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ सब। अब ये वहाँ का सातों नरक का हिसाब है। आगे शब्द आप खाली सागरोपम शब्द लिख दीजिए। फिर ये मत सोचना सागरोपम मतलब कितने बरस हुए, मतलब वहाँ पर आराम से नींद लेने के बजाय लिखो एक सागरोपम का अर्थ हुआ असंख्य बरस। नरक में हमारी तरफ से 100, 200, 500 मत समझना आ गया, ये वहाँ पर हिसाब नहीं है। जहाँ असंख्य वर्ष का एक सागरोपम, अब आप इतने वर्षों तक तो वहाँ जीना ही जीना। परमानेंट नियम, एक जीव एक बार में अगले एक ही भव का आयुष्य बांधेगा। कोई भी हो, सबके लिए कॉमन एक ही नियम। अब जाने के बाद वहां मरेगा तो वहां दूसरा बांधेगा, फिर जाएगा। अब उसको 1000 बार निगोद में जन्म। एक जीव अगले एक ही भव का आयुष्य बांध सकता है। इनका प्रश्न ये था कि अगले एक जीव कितने भवों का आयुष्य एक साथ बांध सकता है? कोई 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कुछ नहीं। बाकी के कर्मों में नियम है। बाकी के कर्म मोहनीय कर्म बहुत 1000 भव के आप बांध सकते हो। मोहनीय कर्म कोई आपको शरीर तो नहीं दे रहा है, मोहनीय कर्म आपका जीवन नहीं चला रहा है। मोहनीय कर्म आपको कसाय देगा, स्वभाव देगा, राग द्वेष देगा, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, क्रोध कसाय करते रहो। ये इसका काम नहीं है। आयुष्य का काम सिर्फ कितना है, आयुष्य को आपके लड़ने झगड़ने से कोई मतलब। मैंने पहले कितनी बार बोला है, हर कर्म का अपना अपना डिपार्टमेंट स्वतंत्र। सभी कर्म अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करेगा। એનું જ વાત છે। 24 કલાક અહીંયા ત્યાં ઘડિયાળ નથી, દિવસ નથી, રાત નથી, કઈ નથી। અહીંના પ્રમાણે ત્યાં ગણિત કરી લેવાનું। ત્યાં એ લોકોને હેપી બર્થડે ક્યારે આવે છે કશું જ લેવા દેવા। દિવસ ક્યારે ઉગે છે ને રાત ક્યારે જાગે છે કઈ કરતા કઈ નથી। અહીંથી अवधि ज्ञान छे, विभंग अवधि ज्ञान है। वो यहाँ का कैलेंडर देखेंगे, मलाड में अत्यारे क्यू चाले छे, 2000 ने केटलामू वर्ष छे, हूँ क्यारे आव्यो तो जन्म्यो तो एटले अत्यारे मारा 2000 वर्ष थया। अब उसको उनको क्या करना है सब? सागरोपम के अंदर क्या हिसाब करने जाए? एक सागरोपम एटले असंख्य वर्ष थई गया, हवे शुं हिसाब करो? તમે અસંખ્યનો આંકડો લખો કાકા, 25-50 ડિજિટનો લખો, હવે क्या मेल खाए? आपने 50 डिजिट लिख दिया तो वो लिमिटेड है, संख्यात है। अब 50 डिजिट आप पढ़ने वाले हो, 100 डिजिट आप पढ़ने वाले हो, अब वो नरक में क्या करेगा?
બસ અંધેરી કોઠડીમાં પડે રહો. જ્યારે જે લોકો અહીંયા જેલમાં જાય છે ઉમ્ર કેદ, આજીવન જેલ, अब वो क्या तारीख વાર ગણ્યા કરશે? રોજ જોયા કરે? જેલમાં હોય છે તારીખ વાર? કઈ કેલેન્ડર કશું કઈ નથી. 4 ભીતની કોઠડીમાં પડ્યા કરે. सब 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 में वहाँ क्या है? वहाँ सूर्य है ही नहीं, चंद्र है ही नहीं. सूर्य चंद्र कुछ भी नहीं है. अब आप सोच लो, समझाए. जब सूर्य चंद्र नहीं है तो प्रकाश कहाँ से आए? अब वो रत्न प्रभा क्या है? आप यहाँ पर लाकर एक रत्न रख दो, समझे कि नहीं, उसकी कितना प्रकाश रहेगा? लेकिन है तो अंधेरा ही है. अब उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरते जाओ, एक से दूसरे में, दूसरे से. मैं आप को ही कह रहा हूँ, पांचम को कितना प्रकाश रात को होता है और अमास को कितना होता है? दसम को कितना होता है? अमास को होता है. तो यहाँ लास्ट में जाओगे तो अमास है, अंधेरी रात है. आप पूरी जिंदगी में ऐसे करके अपनी अंगुली का नाखून भी नहीं देख सकते. जब अंधेरा ही है तो आप ऐसे करके भी नाखून कहाँ से देखें? और इसमें इतने लंबे काल का 33 सागरों, अगर वहाँ जाओ और देखो, या महावीर स्वामी ने जैसा वर्णन किया है वैसे शास्त्र में ऐसे सुन लो, तो फिर आप यहाँ से डर जाओगे कि भी जरूर. और जाके पारसमल जी को पूछोगे तो वो कहेंगे कि धरती पर इधर ये नरक वरक कुछ नहीं है, स्वर्ग नहीं है. तो महाराज लोग अपने सुबह सुबह ठंडे गप्पे लगाते हैं. अब ये ट्रस्टी ऐसा बोल सकते हैं, अब इनको क्या अधिकार है? ये सब बातें नहीं है साहब. ऐसा वर्णन यहाँ का जो एक भी वर्णन इस धरती पर नहीं करते. सातों नरक का वर्णन देखो डिटेल में. पारसमल जी, मैं तो फिर विनती करता हूँ, अगले साल बड़े आचार्य महाराज आएंगे, विनती करना, बाबूजी नरक का स्वरूप समझा. लगे तो मेरे को तो 1 महीना लग सकता है, लेकिन अब तो गिनती के दिन बचे. लेकिन नरक का एक बार ज्योग्राफी तो समझो. नरक की भूगोल क्या है, वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, नरक का वर्णन क्या है. जीव जाता है, आज भी कितने, आज नरक में हमारे मनुष्यों से असंख्य गुना ज्यादा जीव नरक में बैठे. अब विचार कर लो, आप तो यहाँ 50, 60, 70, 80, 100 वाले, और आज यहाँ कितना जन्म होता है पर सेकंड? 33 बच्चों का जन्म हिंदुस्तान. अब हिसाब करो, पर सेकंड में 33 बच्चों का जन्म है. अब मरण कितना है? पर सेकंड में 3 से 7 बच्चों का मरण है. तो रेशियो में प्लस पॉइंट कितना हुआ? 27 से 30 तक का रेशियो पॉइंट जा रहा है. तो वृद्धि हो गई. 1947 में खाली 35 से 40 करोड़ थे, आज हो गए 135 करोड़, 100 करोड़. अब आप हमारे से नरक के अंदर असंख्य गुने ज्यादा नारकी. कितना? असंख्य. हमारे यहाँ मनुष्य संख्या थे, नारकी असंख्य. तो 1 सेकंड में 33 मनुष्य में पैदा होते हैं, तो नरक में 1 सेकंड में कितने पैदा? 1000 भी गिन लो तो भी कम पड़ेंगे, पर सेकंड के 1000. फिर आप बोलोगे कहाँ से जाएंगे? इतने कैसे नरक में जाएंगे? इतने कहाँ से जाएंगे? इतने कैसे? भाई साहब, रोज के पाप करने वाले के आज की तारीख में ये समस्या है. आप जाकर के टोटल कोस्टल एरिया देखो, रोज के मच्छी मार मछलियाँ कितने मार. अब एक मच्छी मार 60, 70, 80 साल की जिंदगी हो और वो रोज की 1000 मछली मारे तो कितनी होगी? और अब हो गया यांत्रिकरण हो गया, तो एक मच्छी मार रोज की 1 लाख मछली मारे तो कितनी? और सब पंचेंद्रिय जीव. तो नरक में तो जाना निश्चित हो गया. पोल्ट्री फार्म में कितने लोग हैं? नरक में जाना निश्चित हो गया. कत्ल खाने में कितने लोग कसाई है? अब वो काटने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, पकड़ने वाला, सब प्रकार करो, हिसाब करो. आज पूरी दुनिया के अंदर प्योर वेजिटेरियन लोग है कितने और मांसाहारी है कितने? करो हिसाब. हम लोग तो विहार करते हैं, यहाँ से बम्बई से बेंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, पूरे रास्ते पर सब जगह पर ढाबा वगैरह जितने आप देख लो, तो जब गिनती करने जाओ तो 90%, 95% जो है सब नॉन वेज.
अब कोई एक हो तो उसको लिखना पड़े, शुद्ध शाकाहारी लिखना पड़े। अब वो भी लिखे क्या और अंदर क्या होवे भगवान जाने। अब आप सोच लो, समझे क्या हालत होती होगी, सोचिए। हर जगह पर अब क्या वो बैनरों का जमाना है, तो रास्ते पर हाईवे पर बैनर लगा लगा कर। अब ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कर लो, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में किसी तरह से जुड़े हो, करण करावण अनुमोदन के निमित्त में बंधे हो, तो नरक गति के सिवाय विकल्प नहीं है। इस तरीके से गिनते जाओ तो एक सेकंड में नरक में 1000 भी जाने वाले हो तो कम पड़ा। आप क्या सोचते हो, महाविद्या में से नरक में नहीं जाते? आज जाके पूछो सिमंदर स्वामी को, सिमंदर स्वामी कहेंगे महाविद्या में से रोज नरक, रोज जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं? सिमंदर स्वामी क्या कर रहे हैं? उनके 10 लाख केवली क्या करें? पकड़ के नहीं रखते, बांध के नहीं रखते। अब किसी के पकड़ने से बांधने से रुकते हैं क्या कोई? अब सिमंदर स्वामी देश ना देवे तो भी उनके समवसर में आने वाले कितने, आने वाले कितने। और वहां भी सिमंदर स्वामी के वहां महाविद्या में घूमने वाले बहुत हैं। हमें तो भगवान नहीं मानता, हमें तो भगवान नहीं मानता, भगवान कहीं छे नहीं। ये बड़ी बात जमा तो खाओ पियो लहर करो मजा करो। आज महाविद्या में सिमंदर स्वामी होते हुए भी सब पाप चले। बस फर्क कितना है, हमारे यहाँ पाप का प्रमाण अगर 80% है तो वहां 10% है, 20% परसेंटेज वाइज। लेकिन पाप नहीं होता है ये हम नहीं कह सकते हैं साहब, ये बात आप जरूर समझ गए। अब अंतर इतना है तो कौन कहाँ मिलेगा? वही बहुत आप भूगोल समझना। मैं फिर विनती करता हूँ, बहुत बड़े आचार्य महाराज हैं, आप ट्रस्टी लोगों को धन्यवाद दीजिए, इतने बड़े आचार्य ला रहे हैं। तो आखिर वापिस नेक्स्ट वर्ष के अंदर एक पूरी ज्योग्राफी जैन सवाल ही नहीं है। अंतर कितना है भाई साहब, लाखों माइल का। जम्बू द्वीप के एक भरत से घातकी खंड के एक भरत के बीच में 2 लाख योजनों का अंतर, कहाँ मेल पड़ेगा? कहाँ से 2 लाख योजनों का? 2 लाख योजन किसके? लवण समुद्र के। अंतर कितना है? मनुष्य के पास यंत्रों की कैपेसिटी कितनी है, साधन था। आज भी आप कह रहे हो ये रॉकेट जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं सर? रॉकेट की जो गति है और उसके माइलेज है और उसकी दिशा और गति है, आप कैलकुलेशन करिए सर। आप वो कैलकुलेशन उसकी गति के हिसाब से करो तो बहुत मुश्किल है। सीधे स्ट्रेट कोई ऊपर वर्टिकल नहीं जा रहे हैं, वो तो सीधे ही जा करके दिशा ही बदल जाती है। ये जरूर है कि अब गति इतनी भारी बनाई है। आप सेकंडों की बात करो, वो सेकंडों में कितने योजन माइल चले जाए। लेकिन सबसे ज्यादा इन यंत्रों की गति नहीं। यहाँ से जीव को नरक में जाना हो तो 1 सेकंड नहीं लगती, हजारों माइलों का योजन है। मनुष्य गति की हमारी धरती से 7वीं नरक तक जाना हो 7 राजलोक, 1 राजलोक बरोबर असंख्य योजन, ऐसे 7 राज। कितना अंतर हुआ साहब? इतने अंतर में इतनी स्पीड से जाना, इतनी गति से जाना, जीव के सिवा और कौन जा सकता? लेकिन वो कब पॉसिबल होगा कि इतनी बड़ी 60, 70, 80 किलो की शरीर काया को साथ में लेकर न जाना हो तो सब। बाकी इतने बड़े भारी वजन को लेकर के आप नहीं जा सकते। जाएगा तो जीव ही जाएगा। जय ना पारस मंदिर देखें था ई कोई जम्मू पासो को आपने अत्र मोटा आचार्य महाराज लावे रे थोड़ी तो विनती कर 14 राजलोक रे कोई लेनो देनो, 14 राजलोक रे कोई लेनो देनो कोई। आप इतना बड़ा पूरी जैन कॉस्मोलॉजी की फिर वापस हम क्लास चालू करेंगे तब समझ। अब ये जो है पूरा 14 राजलोक हो गया। अब ये 14 राजलोक के अंदर खाली इतने में महाविद्या क्षेत्र, ये हमारा मनुष्य क्षेत्र है।
और महाविदेह इसकी ज्योग्राफी में ये आ गया 5 महाविदेह। अब ये तो पूरा खाली देवलोक है और नीचे की नरक है। अबे है कतरो, आप खड़े हो जाओ सिर से पैर तक तो बीच में हमारी नाभि का पोर्शन जितना है उतने में। अब ये हमारी भूगोल है, मनुष्य इतने में ही है धरती पर। अब यहाँ से यहाँ जाओ तो समुद्र वगैरह आगे पीछे ये सब बहुत समुद्र, बहुत पृथ्वियाँ, बहुत है, असंख्य पृथ्वियाँ। आज की भूगोल को तो भगवान महावीर के भूगोल के ज्ञान का 1% ज्ञान। क्यों बेचारों भूगोल वालों को तो माइक्रो टेलीस्कोप से जितना देखेंगे उतना ही ज्ञान हो। महावीर स्वामी को कहाँ टेलीस्कोप लाना था, उनको तो केवल ज्ञान से देखना है। तो उन्होंने तो यहाँ तक का सब बता दिया, यहाँ तक का सब बता दिया। लास्ट कॉर्नर में यहाँ ये जीव जो है इनके बारे में महावीर स्वामी ने बताया सब। एक कॉर्नर में यहाँ जीव कितने हैं, कौन से जीव है, तो महावीर स्वामी ने इसकी बात की। निगोद के जीव जो है वो यहाँ पर कितने हैं, कैसे हैं, उनका जन्म मरण का हो रहा है, उनका आयुष्य कितना है, जीवन कितना है, कर्म कितने हैं, ये सब बातें डिटेल में बता दी। ये केवल ज्ञान का काम ये है, केवल दर्शन से ये देखना है। दुनिया के एकदम अंतिम कोने, अब बस इधर आकाश है, इधर आकाश है, अब वहाँ आलोक है, कुछ नहीं है, तो एक कोने में इतना छोटा सा गोला पड़ा है, उसमें अनंत जीव। अब इसकी डिटेल करके महावीर स्वामी एक एक बात क्लियर करते जा। अब वो भी तो आयुष्य कर्म बांधेगा, वो भी जीवन जिएगा, वो भी मरेगा। अब उसको भी जीवन मरण। इधर से इधर देखने आओ तो ये इधर कौन सा जीव है, इधर कौन सा जीव, ये कहाँ बैठा है। हर एक जीव के बारे में दुनिया के किसी कोने में, जहाँ इंसान तो कभी पहुंच ही नहीं सकता है, मनुष्य का क्षेत्र बहुत लिमिटेड आ गया। अब यहाँ पर ये पंचेंद्रिय त्रस्त जीव जितने हैं वो सब इसी में आ गए। अब बाहर तो छोटे स्थानक सावर जीव है, अब वो अपने हिसाब से है, लेकिन जीव है तो कर्म है, जीव है तो शरीर है, जीव है तो आयुष्य है, जीव है तो जीवन है, जीव है तो जन्म है, जीव है तो मरण है, मरना तो है ही। अब कौन इसको कौन देखे सर। अब इसको देख करके इसके अंदर एक के अंदर इतने अनंत जीव जो है, अब ये अनंत जीव इसमें रोज जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, अब इनका क्या होगा, ये कितने हैं, तो संख्या बताने के लिए केवल ज्ञान ही बताएंगे। अब क्या है इनका, एक एक जीव का हिसाब पूछो, क्या है, कैसा जीवन। अब इनको भी जन्म लेना है, मरना है, जीवन जीना है। अब ये मर करके या तो वापिस इसी में जन्म लेवे, ये मर करके या तो यहाँ से जाकर इसमें जन्म लेवे, ये मर करके यहाँ पर जाकर जन्म लेवे। ये इनका 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 अपना परिवार है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है। अब वो जाके उसी में रहेंगे। बाहर आ गए तो आलू अगर जल गए सब तो उसमें से मर के प्याज में आ जाएंगे, प्याज में से गए तो वो लहसुन में आ जाएंगे, लहसुन में से मर गए तो गाजर में जाए। जब तक उसकी स्वकाय स्थिति पूरी नहीं होगी वहां तक नहीं जाएगा, वो उसी में जन्मेगा, उसी में मरेगा। और किसको करना है, कोई महावीर स्वामी को कुछ भी नहीं करना है, ये कर्म की व्यवस्था है। महावीर स्वामी कह रहे मेरा काम नहीं है भाई। महावीर स्वामी इस समय यहाँ पर बैठे सिद्ध शिला ऊपर, वहाँ मोक्ष में जाकर बैठे थे। अब उनको कुछ भी नहीं करना, करना कहाँ से, हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं, करना क्या, और क्यों करने आएंगे। अभी बैठे सिमंदर स्वामी यहाँ बैठे, तो सिमंदर स्वामी क्या करने आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं कोई। आप अपने कर्म लेकर आए, आप अपना कर्म लेकर आए हो, अपने कर्म के हिसाब से आप अपना हिसाब करते जाओ, करते जाओ, करते, जो करना है करो। अब धर्म ने क्या किया है, धर्म ने समझ दी है, ये करोगे तो पाप है, ये करोगे तो दुख होगा, ऐसे पाप करोगे तो ऐसा कर्म बंधेगा, ऐसा कर्म बांधोगे तो ये उदय में आएगा, इससे बचो। धर्म कुछ नहीं बताता है कि धर्म पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं दे रहा है आपको। धर्म तो पाप से बचाने का, किए हुए पाप से छोड़ने का। दो बात उसके पास है, तीसरी बात नहीं है।
अगर इतनी बात भी निकाल लो तो धर्म में क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है, भगवान केवल ज्ञानी वितरागी थे, तो संपूर्ण जगत का स्वरूप बताना उनका कर्तव्य है, वो ना कैसे कहेंगे। अब इनके जैसे पारसमल जैसे तो रोज हजार आएंगे, वो कहेंगे हम तो स्वर्ग नहीं मानते, वो कहते हैं हम तो नरक नहीं मानते, वो तो कहते हैं हम ये नहीं मानते। अब स्वाभाविक है, आप ना कहोगे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। न तो देखा है न जाना है, न शास्त्र पढ़ करके स्वरूप समझा है, न कोई जा करके देखा है। तो आपने क्या देखा है? हॉस्पिटल देखिए, यहाँ का झुपड़पट्टी देखिए, धारावी देख करके बोलोगे इस नरक है बाप से, ने जू में जैने बंगला 10 करोड़ बाप से ऐस तो सर स्वर्ग और नहीं तो क्या है। उन्होंने पथारी मैथे उठना ही नहीं पड़े, बटन दबायो के पानी आयो, बटन दबायो के दरवाजा खुले, बस ये स्वर्ग है। और वो बेचारे बिल्कुल गटर के नाले पर झुपड़ी बना करके जी रहे बाप से, खावन को नहीं पीवान को नहीं, वो नरक। और आज ये स्थिति है कि धारावी की झुपड़पट्टी में बनती हुई पानी पूड़ी भेलपूड़ी यहाँ आकर के जू के बंगले वाले खा रहे हैं। ये हालत, बोलते ये है कि वहाँ नरक है ऐसा, लेकिन वहाँ पर बनी हुई चीजें यहाँ आकर का, वो भी जो है वहाँ बना करके भर के ला कर, अब वो बेचारा वहीं झुपड़पट्टी में रोज खड़ा रहे तो कौन खाएगा, वहाँ के लोग कौन खाएंगे। लेकिन वो बनाएगा 5 पैसे की पड़ेगी, लेकिन यहाँ आके 25 रुपए में बेचेगा तो भी खाएगा। तकलीफ ये है। और इसलिए आप देखिए, श्रीमंतों में बीमारियां ज्यादा है, गरीबों में बीमारियां कम है। कोई गरीब को बेचारे को डायबिटीज भी नहीं होती, श्रीमंतों ने डायबिटीज ना थाए तो सेठ ना कहेवाय, आ तकलीफ सेठ को नहीं कहेवाय। अब घर है तो 5 बेडरूम में एसी लगा हुआ है, तो 5 जना ने डायबिटीज थवानो, एक नहीं 2 फ्रीज लगे हुए हैं साहब, तो बरोबर होने ही वाला है डायबिटीज, नक्की है। गरीब ना घर में बेव ना थी, एसी नहीं ने फ्रीज नहीं, उनको डायबिटीज नहीं होती। वो 10 घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगा के आ जाए। आप तुम्हारा घर में झाड़ू नहीं निकले, तुम्हारा घर में एक दिन काम वाली बाई ना आवे तो भैरव कमर दुखवा मारे, ये समस्या है। कई घरों में 2 दिन तक बर्तन पड़े रखेंगे सर, कोई नहीं आवे तो। हमारे घर में बर्तन बहुत है सर, नहीं तो वो सब आजकल आ गए ना सर, रखेंगे, क्रॉकरीज बहुत रखी हुई है, पड़े रहेंगे। किसको मालूम है कि भाई अठवाड़ू पड़ू रहे तो एमा असंख्य जीवोत्पत्ति थाय छे, न रखाय। क्या फर्क पड़ता है, अपने हाथ से धोके साफ करके रख लो भागशाली। क्या हाथ की मेहंदी जाती है क्या? पुरुषों ने क्या मेहंदी नो सवाल आ रहा है, पुरुषों को मेहंदी लगती है क्या? बिल्कुल नहीं, आप अपने हाथ से धो के रख दो, खेल खत्म। सेठानी के मेहंदी रखती है, उनको मेहंदी जानी नहीं चाहिए, रोज सबको मेहंदी दिखाई देनी चाहिए, वो हाथ नहीं लगाएगी भाई। ऐसा जीवन, कृत्रिम जीवन मत जिए। आज શું परदेशों में नौकर चाकर रखवा पड़े? બધું जाते आते करो कि नहीं करो? प्रदेशों में जाके पूछो साहब, वहाँ के लोग बोलते हैं हमारा करता तो तमें सुखी छो, અહીંયા हमें तो बद्दू हवार ત્યાં जाते काम करिए, घर में झाड़ू भी खुद निकालेंगे, कपड़े भी खुद धोएंगे, हाथ से प्लेट भी खुद साफ करेंगे। तो उनको अपने घर का काम खुद करने में किसी को शर्म नहीं है। अब पति पत्नी दोनों को जॉब करने जाना है, फटाफट दोनों ने मिल करके एक ये करे हो गया चलो। અહીંયા શેઠ ને શેઠાણી ને બે ની વચ્ચે જે છે કામ વાલી ભાઈ, અહીંયા ये परिस्थिति। ऐसी स्थिति के अंदर जब आप पूरे लोक में सर्वत्र जाओ, इधर देखिए आप, एक महावीर स्वामी कह रहे एक सुई रखने की जगह खाली नहीं है जहाँ जीव ना, एक सुई रखने की जगह, इतनी सी भी जगह खाली नहीं है कि जहाँ जीव ना। और वो भी कितने, जहां सुई रखो उतनी जगह में भी अनंत जीव। ये एक बोला यहाँ पर भी किया तो इतने में अनंत है। अब हिसाब कर लो, 14 राजलोक का हिसाब, एक जगह खाली नहीं। नरक में जाओ तो आज वहां पर जो है हाउसफुल है, ओवरलोड है। लेकिन नरक के बाहर कभी पार्टियां नहीं लगता कि हाउसफुल, भाई हमें कोई आवजो मत, अब आज जगह को नहीं है। कल मलाड में आप ना कह सकते हो, मलाड में ओवर हो गया है सब, अब मत आना कोई। नरक में कोई पार्टियां नहीं लगता है, कोई हाउसफुल नहीं, रोज आ रहे हैं।
हिंदुस्तान में 1 सेकंड के 33 बच्चे जन्म में, किसको पता चले? डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन कितनी हो गई स्क्वायर मीटर जगह के अंदर, प्रमाण कितना? तो हमारी तो मनुष्य भूमि तो है इतनी है ना, हम तो इतने में मनुष्य, नरकी जीव कितने में? विस्तार, भौगोलिक विस्तार उनका कितना है? हमारे से हजारों गुना ज्यादा, असंख्य गुना ज्यादा उनका भौगोलिक विस्तार है। तो वहाँ कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी, वहाँ कुछ आने दो, जितने आते हैं रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। और अभी ये पंचम काल का कलयुग है, और गिरेगा और गिरता जाएगा और गिरता जाएगा। अगर आज 1 सेकंड में नरक में 1000 जाने वाले हैं, तो आगामी 10 साल के बाद नरक में जाने वालों की संख्या 1000 की 2000 हो जाएगी। फिर 5-10 साल के बाद, 50 साल के बाद देखोगे कि नरक में प्रति सेकंड जाने वाले 5000। पंचम आर्य का कलयुग है। क्यों बढ़ेगी संख्या? पाप बढ़ेगा तो संख्या बढ़ेगी। आखिर किसके आधार पर है नरक? पाप के आधार पर। अब पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप कलयुग के अंदर। इसी को कलयुग कहते हैं, जहाँ पुण्य घटता जाए पाप बढ़ता जाए, इसका नाम कलयुग। जहाँ धर्म घटता जाए अधर्म बढ़ता जाए, इसका नाम कलयुग। जहाँ पुण्यशाली घटते जाए पापी बढ़ते जाए, इसका नाम कलयुग है। जहाँ सुख घटता जाए और दुख बढ़ता जाए, इसका नाम कलयुग। जहाँ उच्च गोत्र के वर्ग घटते जाए, नीच गोत्र के वर्ग बढ़ते जाए, इसका नाम कलयुग। जहाँ बड़े घरानों की सुशील सन्नारियां वेश्याओं के जैसा वर्तन व्यवहार करेगी, इसका नाम कलयुग। बड़े घरानों की सुशील कन्याएं रस्तों पर अपने शरीर का प्रदर्शन करेगी, इसका नाम कलयुग है। आप ये परिस्थिति एक एक से एक एक देखते हैं, 1000 बातों का लिस्ट बना। अब रिस्पेक्टिव लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या घटती जाएगी और गाली गलौज की गंदी भाषा बोलने वालों की संख्या बढ़ती, दिन प्रति दिन ये होने। तो संस्कार जा रहे हैं सर। 2 बरस के 2.5 बरस के बच्चे को माँ बाप स्कूल में भेज रहे हैं, तो माँ बाप के तो संस्कार गए। अब वहां जो सीख के आएगा वही, वहां संस्कार नहीं मिलेंगे, वहां शिक्षा मिलेगी। यहाँ संस्कार मिलते थे ये चले। आपके जमाना में पौष भरी उम्र में स्कूल में जाते, और आज 60-70 साल के अंदर 5 साल से घट करके अब 2-2.5 साल पर आ। तो पहले 5 साल तक संस्कार तो मिलते थे, हर बात के संस्कार आते थे। माँ बाप का काम तो संस्कार देना। संस्कार जीवन भर रूढ़ हो जाएंगे, शिक्षा जीवन भर नहीं रहेगी। शिक्षा आयुष्य भर, जीवन भर कहाँ चलेगी साथ में? संस्कार कायम। और धर्म के साथ संस्कार जुड़ जाए तो एथिक्स और मॉरल के साथ धर्म भी आ जाए। अब ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो। पहले गए कॉन्वेंट में, वहां से एलकेजी से पढ़े, वहां से माँ बाप का संबंध टूटा। अब बड़े हो गए तो क्या मैं परदेश बनवा जाएगी। परदेश पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब, परदेश पढ़ के आ करके कहाँ जॉब मिला है, कहाँ नौकरी करेंगे। तो माँ बाप समझते हैं कि भाई बेटे को हमने खाली जन्म दिया था बस, अब इससे सिवाय आपके पास कोई चांस नहीं। ये कर्म की गति है भाग्यशाली। अब जिस प्रकार के जैसे कर्म जीव बांध के जाए, अब कौन कैसे कर्म बांधे इसके ऊपर आधार। हम जिसके विषय की मुख्य बात यहाँ कर रहे थे वो है नंदीवर्धन। मथुरा नगरी की कल हमने बात शुरू की थी सब्जेक्ट। तो मथुरा नगरी के अंदर यहाँ पर जो है भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। भगवान महावीर की देशना होने, ऐसी स्थिति के अंदर गौतम स्वामी जो है विहार करते हुए निकल रहे और रास्ते में दृश्य देख रहे हैं, और उस दृश्य के बारे में जाकर भगवान को पूछ रहे हैं, हे भगवान क्या बात है। विपाक सूत्र का बेसिक कंटेंट जो है ये है, जो 11वां अंग सूत्र आगम बनाया है। विपाक सूत्र के अंदर मुख्य रेफरेंस जो मिल रहा है, आधार किस बात का? महावीर स्वामी के साथ में गौतम स्वामी विहार करें, भगवान 30 बरस विहार।
30 वर्ष तक गौतम गणधर के रूप में महावीर स्वामी के साथ विचरण कर, तो 30 वर्ष के दिन कितने हुए साहब? वर्ष का दिन तो 360 उस समय भी होता है। अब उस हिसाब से गिनती कर लो। अब गौतम स्वामी जा रहे हैं, सामने क्या दृश्य देख रहे हैं? मतलब महावीर स्वामी के कंटेम्पररी उस टाइम काल के अंदर ऐसी घटनाएं पृथ्वी तल पर होती थी। उस समय की जो है राजाओं की जो परिस्थितियां थी और राजाओं के द्वारा दंड नीति जो अपनाई गई थी, उस दंड नीति का ये जो आज आप तालिबानों को देख रहे हैं, आज जो देख रहे हो, तो वो भी कह रहे, तालिबान यही तो कह रहे हमारी शरिया के अनुकूल हम सजा देंगे। अब उनके कानून उनके शरिया में बने हुए, ऐसी स्थिति जो है। तो यहाँ पर आप जो है दंड नीति क्यों अपनाई गई थी? अपराध तो किसी को पसंद नहीं है, पाप की प्रवृत्ति किसी को पसंद नहीं, कोई राजा नहीं चाहता है। लेकिन अब ये तो कर्म का खेल है, संसार में बिना पाप का तो एक दिन खाली गया ही नहीं। आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछो, हे भगवान आ धरती ऊपर पाप क्यारથી થાય છે साहब, કેટલા काल? सिमंदर स्वामी कहेंगे, भाई संसार के अंदर पाप जो है अनादिकाल से चल रहा है। जब से इंसान का अस्तित्व है तब से पाप कर्मों का भी अस्तित्व, बस समय समय पर बदघट हुई है। कब बढ़े कब घटे, कब बढ़े कब घटे, ये जरूर हुआ है, बाकी तो पाप तो रहे ही रहे। क्या भगवान दुनिया में कभी ऐसा कोई दिन आ जाएगा धरती पर पाप ही नहीं रहे? सिमंदर स्वामी साफ ना कहे, नहीं आ फरक શું પડશે? પ્રમાણ વધઘટ થશે। ચોથો આવશો ત્યારે પાપનું પ્રમાણ 10%, 20% રહેશે, ધર્મનું પ્રમાણ 80% થશે। પાંચમો આરો આવશે ત્યારે ધર્મનું પ્રમાણ 10-20% રહેશે અને પાપનું પ્રમાણ 70-80%। અને છઠ્ઠો આરો આવશે ત્યારે 100% એકલું પાપ। अब मनुष्य को पेट के लिए तो पाप करना अनिवार्य हो गया। जब इंसान धरती पर है, औदारिक शरीर है, तो खाना अनिवार्य है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन अब फायदा कहाँ है? देव नरक को, वहां पर तो खाना ही नहीं है, भोजन नहीं है, पेट नहीं है, फिर भी पाप की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी बात ही नहीं, बहुत है। अब पेट तो एक लिमिटेड है, पेट इतने अनाज से भर जाता है, लेकिन मन तो साहब बहुत अच्छा, मन तो और भी अलग है। अब मन का क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जब जीवों ने अपनी अंदर वृत्ति बना ली, परिणति अंदर आपने ऐसी बना ली, वो जाकर के आपको पाप कर्म करना। आप पहले अंदर से वृत्ति बदलो कि मारे पाप कर्या वगरनु जीवन जीवू छे। कल मैं आपको यहाँ पर 12 व्रत के स्वरूप के अंदर एक एक हिसाब बता रहा हूँ कि आप कितने पाप को कितने कम कर सकते हो, विच इज टोटली अननेसेसरी इन द लाइफ। जीवन के अंदर जिसकी आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है, कितने घटा सकते हो, कितने घटा सकते हो, कितना प्रमाण कम कर सकते हो, ये समझ लेंगे तो आपके लिए व्रत नियम लेना भी बहुत आसान हो सकता है। तो यहाँ पर गौतम ने देखा और गौतम पूछ रहे कि हे भगवान, मैं संसार में जब कोई विहार करके या गोदरी पानी करके जाता हूँ, ऐसे दृश्य देखने में आते हैं, तो ये कौन है, क्या बात क्या है? किस तरह से एक राजकुमार को जो है लोहे की कुर्सी पर बैठा करके भट्ठी में तपा करके लाल चौल गर्म करके उस पर बैठा है। अब जो सोचिए साहब भट्ठी में तप जाए, उसके ऊपर बैठाया जाए तो क्या हालत है? सामान्य रूप से आप टोप को, गर्म टोप को हाथ लगा दो तो क्या हालत? तो जब इंसान को ऐसे ही बैठा दो तब क्या हो? आप ये सोचिए। तो ये तो होता रहा है, और क्या क्या करेंगे, और क्या क्या करेंगे साहब? गौतम स्वामी दृश्य देख रहे हैं और वो देख करके पूछे तो किसको पूछे? वो जाके किसको पूछे? केवली तो भगवान है। और केवली को पूछने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तीनों काल का ज्ञान एक साथ में मिलता है। कारण कार्य भाव, कार्य कारण भाव का जो हेतु संबंध है वो एक साथ में मिलता है।
ये विशेषता। नहीं तो फिर दोनों तरफ से क्या होगा कि कार्य कारण भाव जानने को नहीं मिला तो कार्य कार्य तो दृश्य आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या? आखिर ऐसा संसार में क्यों होता है? लोग ऐसा क्यों करते हैं ऐसा? अब ये कारण जानने के लिए भगवान को पूछा जा रहा है, हे भगवान इसका क्या कारण? अब भगवान ने भी क्या सोचा है, जगत के जीवों को इससे लाभ हो सकता है, इसलिए उसका मूल कारण पता, इसने कैसे कर्म बांधे, कर्म क्यों बांधे, उसने पाप कैसे किए, पाप ऐसे किए इसलिए ऐसे कर्म बांधे। ये पूरी चैन जो है, ये पूरी चैन समझानी बहुत जरूरी। ये समझा, ऐसा पाप किया, ऐसे कर्म बांधे, ऐसा उदय में आया, ये हालत हो रही। अब गौतम पूछेंगे भगवान અહીંયા પકડાઈ ગયો ને રાજા સજા આપે છે, એ જ સજા છે કે એના સિવાય પણ? तो महावीर कह रहे हैं गौतम ये तो पकड़ा गया इसलिए यहाँ पर है, अब जो नहीं पकड़े जाए उनको सजा नहीं होती है तो क्या होगा? कोई जरूर, कोई यहाँ पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, नरक तो है ही। आप यहाँ भाग सकते हो, यहाँ अंडरग्राउंड हो सकते हो, लेकिन वहाँ क्या करें? जहाँ जाना ही नरक में तो वहाँ तो कर्म फल है ही। पूरी बात अच्छी तरह से समझा रहे हैं। ये एक अध्ययन छठा है, छठा अध्ययन हमने शुरू किया है, थोड़े दिन में पूरा हो जाए, अच्छी बात है। पानार बोर्से सात बोर्से स्वर्गे वनुसागरम सबस्वदैगणम पानस लेवच बहुलेनवा ससिद्धेनवा सिद्धेनवा मुस्तिने वैसने सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयते शासनम।